Welcome back. Today, we will be discussing the second subtopic of cellular injury, which is apoptosis. This lecture will also be bilingual, which means I will be discussing this topic in both Hindi and English language. So, what is apoptosis? Apoptosis is ATP dependent programmed cell death. Apoptosis occurs through three distinct pathways, which is intrinsic pathway, extrinsic pathway, and perforin granzyme B pathway. All these three distinct pathways eventually activate caspase, which is a cytosolic protease, and further cause the cellular breakdown, which is cell shrinkage, chromatin condensation, membrane blebbing, and formation of apoptotic bodies. These apoptotic bodies are further phagocytosed by macrophages. Under the microscope, these cells undergoing apoptosis have eosinophilic cytoplasm, which means they appear to be bright pink or red color, and basophilic nucleus, which appears to be blue or purple under microscope. The nucleus undergoes pycnosis and karyorrhexis, and the cell membrane typically remains intact without any significant inflammation, unlike necrosis. Further, there is DNA laddering, which is seen on gel electrophoresis. There are fragments of DNA that have multiples of 180 base pairs. For example, 360 base pairs, 540 base pairs, etc. If these such fragments are visible on gel electrophoresis, it's a sensitive indicator of apoptosis. Starting from the first pathway of apoptosis, it is intrinsic pathway. This is also known as mitochondrial pathway, which occurs during the tissue remodeling in embryogenesis. It occurs because a regulating factor is withdrawn from the proliferating cells population. Example, when an immunologic reaction is completed, interleukin 2 decreases, which causes apoptosis of proliferating effector cells. This also occurs after exposure to injurious stimuli, for example, radiations, toxins, and hypoxia. This intrinsic pathway is regulated by BCL2 family of proteins. They can be of two types, BAC and BCL2 BCLXL. BAX and BAC are pro-apoptotic, whereas BCL2 and BCLXL are anti-apoptotic. Mnemonic to learn this is BABA means BAD, bad for survival, which will be pro-apoptotic and cause apoptosis of the cells. While with BCL for BCL2 and BCLXL, we can learn it as be clever, live, which is anti-apoptotic and will prevent the apoptosis and cause survival of the cells. The mechanism of action of BAX and BAC are that they form pores in the mitochondrial membrane. This causes the release of cytochrome C from the inner mitochondrial membrane into the cytoplasm, which causes activation of caspase, whereas BCL2 keeps the mitochondrial membrane impermeable and thereby prevents the release of cytochrome C into the cytoplasm. If BCL2 is overexpressed, it causes follicular lymphoma, which is translocation 14-18. In this, there is decreased caspase activation, which leads to tumorigenesis. Next pathway is extrinsic pathway, which is also known as death receptor pathway. In this,
there is ligand receptor interaction. For example, Fas ligand binding to Fas or CD95, whereas TNF alpha binding to its receptor TNF receptor. Fas ligand interaction is necessary for thymic medullary negative selection. If there is any defect in the Fas ligand interaction, it will cause autoimmune lymphoproliferative syndrome. In this syndrome, there is failure of clonal deletion, which increases the number of self-replicating lymphocytes. Therefore, the patient presents with lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, and autoimmune cytopenias. Next is the perforin granzyme B pathway. In this pathway, there is release of granules that contain perforin and granzyme B. These granules are present in immune cells like cytotoxic T cell and natural killer cell. When the perforin is released, it forms pore in the target cell. This allows the granzyme B to enter the target cell and cause apoptosis. So in short, जो apoptosis होता है वो एटीपी के डिपेंडेंट एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ का प्रोसेस होता है जो कि 3 डिफरेंट पाथवे से होता है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और परफोरिन ग्रांजाइम बी पाथवे। ये तीनों डिफरेंट पाथवेज इवेंचुअली कैस्पेस को एक्टिवेट करते हैं जो कि साइटोप्लाज्म का एक एंजाइम है प्रोटीएजेस। ये सेलुलर ब्रेकडाउन करता है जिसके बाद सेल श्रिंक हो जाता है, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है और मेम्ब्रेन में ब्लेब्स आने लगते हैं। जो सेल होता है वो एक एपोप्टोटिक बॉडी में बन जाता है जो कि बाद में मैक्रोफेज के थ्रू फेगोसाइटोस हो जाता है। ये जो सेल्स होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो इओसिनोफिलिक दिखते हैं साइटोप्लाज्म में और बेसोफिलिक दिखते हैं न्यूक्लियस में। मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है वो माइक्रोस्कोप के अंदर ब्राइट पिंक या फिर रेड दिखेगा क्योंकि वो इओसिनोफिलिक होता है प्रोटीन्स के डीनेचर की वजह से, और न्यूक्लियस क्योंकि उसका क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है तो माइक्रोस्कोप के अंदर वो ब्लूइश या पर्पलिश दिखता है। इसको हम बोलते हैं बेसोफिलिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ही चेंजेस आते हैं जैसे कि पिक्नोसिस मतलब न्यूक्लियर कंडेंसेशन और कैरियोरेक्सिस यानी कि न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो इंटैक्ट ही रहता है और उसमें कोई इन्फ्लेमेशन भी नहीं होती जैसे कि नेक्रोसिस में होती है। डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमें उसकी डीएनए लैडरिंग दिखता है, मतलब डीएनए के एक फ्रेगमेंट में मल्टीपल्स ऑफ 180 बेस पेयर्स होते हैं जैसे कि 360 बेस पेयर्स या फिर 540 बेस पेयर्स। अगर ऐसा फ्रेगमेंट डीएनए का दिख रहा है मतलब कि ये एक सेंसिटिव इंडिकेटर है एपोप्टोसिस का। एपोप्टोसिस का फर्स्ट पाथवे है इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। इसमें ये पाथवे एम्ब्रियोजेनेसिस में होता है टिश्यू रीमॉडलिंग के दौरान, जब कोई रेगुलेटिंग फैक्टर प्रोलिफरेटिंग सेल पॉपुलेशन से हट जाता है तो वो उन सेल्स का एपोप्टोसिस कराता है। फॉर एग्जांपल, जब एक इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन कंप्लीट होता है तो इंटरल्यूकिन 2 कम होने लगते हैं और उसकी वजह से प्रोलिफरेटिंग इफेक्टर सेल्स का एपोप्टोसिस हो जाता है। ये पाथवे कोई इंजूरियस स्टिम्युलाई के एक्सपोजर से भी अकर कर सकता है जैसे कि रेडिएशंस, टॉक्सिन्स, हाइपोक्सिया। अगर ऐसा कोई स्टिम्युलाई आता है तो बैक्स और बैक प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये प्रो एपोप्टोटिक होते हैं जो कि सेल का एपोप्टोसिस करा देते हैं। इन्हीं का ऑपोजिट होता है BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स BCL2 और BCLXL। ये एंटी एपोप्टोटिक होते हैं, मतलब कि ये एपोप्टोसिस को नहीं होने देते। इनको लर्न करने का एक निमोनिक है BA से हम याद रख सकते हैं BAD बैड फॉर सर्वाइवल मतलब एपोप्टोसिस को करवाएगा, और BCL मतलब बी क्लेवर लिव यानी कि एपोप्टोसिस को स्टॉप करके सेल का सर्वाइवल इंक्रीज करेगा।
पैक्स और बैक जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पोर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, और वो कैस्पेस को एक्टिवेट करके एपोप्टोसिस करा देता है। बट BCL2 जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को इम्परमिएबल रखता है, जिसकी वजह से साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में नहीं आता और एपोप्टोसिस को भी प्रिवेंट करता है। अगर BCL2 ओवर एक्सप्रेस्ड हुआ तो एक डिजीज़ हो जाती है फॉलिकुलर लिम्फोमा, विच इज़ ट्रांसलोकेशन 14-18। इसमें कैस्पेस का एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है और बाद में ट्यूमरिजेनेसिस होता है। नेक्स्ट पाथवे है एक्सट्रिंसिक डेथ रिसेप्टर पाथवे। ये एक लाइगेंड रिसेप्टर इंटरैक्शन के बेसिस पे है, जिसमें एक लाइगेंड रिसेप्टर पे बाइंड करता है। फॉर एग्जांपल, फास्ट लाइगेंड बाइंडिंग टू फास्ट CD95 रिसेप्टर, या फिर TNF अल्फा बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर TNF रिसेप्टर। फास्ट लाइगेंड इंटरैक्शन थाइमिक मेडुलरी नेगेटिव सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर इस इंटरैक्शन में कोई भी डिफेक्ट आता है तो ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम कॉज होता है, जिसमें क्लोनल डिलीशन में फेलियर हो जाता है। इसकी वजह से सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हो जाते हैं और पेशेंट में लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली और ऑटो इम्यून साइटोपेनियाज होने लगता है। थर्ड पाथवे है परफोरिन ग्रैंजाइम बी पाथवे। इसमें कुछ सेल्स होती हैं जैसे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। इन सेल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर परफोरिन और ग्रैंजाइम बी प्रेजेंट होता है। जब ये सेल्स इन ग्रैन्यूल्स को रिलीज़ करती हैं, ये ग्रैन्यूल्स परफोरिन रिलीज़ करते हैं जो कि टारगेट सेल में पोर बनाते हैं और ग्रैंजाइम बी को हेल्प करते हैं उस सेल के अंदर एंटर करने में और उसका एपोप्टोसिस कराने में। Now let's understand all these pathway through this diagram. First, हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक पाथवे विच इज़ माइटोकॉन्ड्रियल। कोई भी एक्सटर्नल इंजूरियस स्टिमुलाई जब आएगा तो उस सेल का DNA डैमेज करेगा, जैसे कि रेडिएशन, टॉक्सिन्स, हाइपोक्सिया। इसकी वजह से P53 एक्टिवेट होता है और पैक्स और बैक प्रोटीन सेल में आ जाते हैं। ये प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पोर्स बना देते हैं और ये कॉज करते हैं साइटोक्रोम सी को सेल के साइटोप्लाज्म में आने के लिए। इसके बाद साइटोक्रोम सी कैस्पेस को एक्टिवेट करता है और जनरल मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन सेल्स में लाता है, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक ब्लेब, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन और इसके बाद एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन, जो कि फर्दर मैक्रोफेज में फेगोसाइटोस हो जाता है। सेकेंड पाथवे वी डिस्कस्ड वॉज एक्सट्रिंसिक पाथवे या फिर डेथ रिसेप्टर पाथवे। इसमें सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जैसे कि फास्ट रिसेप्टर्स, TNF रिसेप्टर, ये सब, और इनके रिस्पेक्टिव लाइगेंड्स आते हैं जैसे कि TNF अल्फा और फास्ट लाइगेंड। अगर लाइगेंड रिसेप्टर इंटरैक्शन नहीं होता तो ये भी सेल के अंदर कैस्पेस को एक्टिवेट करते हैं और फर्दर साइटोप्लाज्मिक ब्लेब, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, एपोप्टोटिक बॉडी और फैगोसाइटोसिस को स्टिमुलेट करते हैं। थर्ड पाथवे है परफोरिन ग्रैंजाइम बी पाथवे। इसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल ग्रैन्यूल्स रिलीज करती है जिसके अंदर परफोरिन और ग्रैंजाइम बी प्रेजेंट होता है। जो परफोरिन है वो टारगेट सेल में एक पोर बना रहा है और ग्रैंजाइम बी जो है वो इस पोर के थ्रू सेल के अंदर एंटर करता है। जब ग्रैंजाइम बी सेल के अंदर एंटर करता है तो वो कैस्पेजेस एंजाइम को एक्टिवेट करके साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स, न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन, एपोप्टोटिक बॉडीज बनाता है और मैक्रोफेज उसको फेगोसाइटोस कर लेते हैं।